Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Flexionity. Today we have with us our remarkable guest Shazib Ali, a dedicated law student, an alumni of SUSI 2023 and the chairman of Law Students Council Pakistan. It is a pleasure to have you here Shazib. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you. And in fact, it's my pleasure and honor to be here with you and sharing this podcast. Okay. And So to kick things off, could you please अपना थोड़ा सा educational background describe करें and your journey leading up to a law school? well, I believe this is the first time I will be discussing my journey Okay. on a live platform and will be sharing with the audience. I originally hail from a village which is located near Mirpur city in Sindh, which is around in the central Sindh. And I gained my primary education there from a government school, which was in a very terrible condition at that time, and Alhamdulillah has improved by now. And then I shifted to the city near Tanwadam, and then gained my middle education from there, high school education, college education, and then ultimately, in order to pursue Sharia and law, chose International Islamic University Islamabad. So until now, this was a journey that I continued, and I'm hoping to continue it further as well, and hoping to pursue masters as well. So like law में career को choose करना वो सब क्या था like एकदम सोचा हुआ था बचपन से ही like करना है या फिर बाद में एक साथ नहीं, मेरे ख्याल से बचपन से तो बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जो अधूरी रह जाती हैं. कभी इंसान को पायलट बनने का शौक होता है, तो कभी नेवी में जाने का. लेकिन जब से वो मेच्योरिटी की स्टेज आती है तो आप समझते हैं कि आपका पर्टिकुलरली इंटरेस्ट किस तरफ है. exactly एंड इट वाज बैक इन माय 10th grade when I realized कि science is not my subject. And I believe this is something we all should teach the students at the very initial stage कि और उस स्टेज पे इंसान को ये नहीं पता होता कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ या क्या बनना चाहता हूँ. उस वक्त सिर्फ ये होता है कि I love studying mathematics or I love studying this. And that was the time I realized I like studying Pakistan studies, I loved studying English, I loved exploring history, I loved researching about the topics which at that time seemed useless to most of the students because they were primarily focused on science subjects. And that was the point I decided to choose law as a field because social sciences was the only way I could pursue. And I think Sharia was something I was looking for from the very beginning, but my primary interest was in Arabic language. okay This is what attracted me towards Sharia and law. उसके अलावा शरिया के हवाले से कुछ ख़ास सोचा गया नहीं था, लेकिन यह है कि वक्त बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वक्त ने बेहतरीन तदबीर की एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई चोज़ शरिया. who admired you और ऐसी क्या उनकी achievements और ऐसी qualities थी जो you want कि मेरे अंदर भी हों. आई थिंक जो क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा मैं अपने अंदर देखना चाहता था वो पब्लिक स्पीकिंग की थी. मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता था पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से और लोगों के सामने बात करने से. और उस वक्त जो मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करता था वो कुछ बैरिस्टर्स थे जिनको मैं बेहद एडमायर करता था. एंड पर्टिकुलरली फॉर द रीज़न कि जब वो बात करते थे तो बहुत स्लो, ठहर ठहर के मेच्योरिटी के साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जो ना करने वाली हो. And that is one of the primary qualities that I've seen in successful lawyer. This quality particularly drew me towards law. लेकिन ये कि there was no particular admiration. I did study Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah and I really admire his overall journey as a law student and then as a legal practitioner as well. So this is admiration, this is inspiration for all of us, I believe. Interesting. Okay, what are the misconceptions like जो एक law school के बारे में होती हैं और ऐसी क्या encounter किया आपने जो like लगा कि नहीं अब आ गया हूँ और ये चीज़ like पता लग चुकी है, नहीं ऐसा नहीं है जो ये बाहर सोचा जा रहा था being into a law school. I think सबसे बड़ी misconception तो यही है कि हमारे यहाँ unfortunately ख़ास तौर पे जब हम कॉलेज लाइफ में थे, बल्कि ये मिथ अभी भी एग्जिस्ट करती है कि अगर आपने करियर बनाना है तो दैट इज़ ओनली फर्स्टली इन द मेडिकल फील्ड, सेकेंडली इन द इंजीनियरिंग फील्ड. उसके अलावा कहीं पर आपका करियर नहीं है. सोशल साइंसेस को अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है.
एंड लॉ वाज वन ऑफ देम। तो उस वक्त ख़ास तौर पे जब लॉ एडमिशन टेस्ट या ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट वगैरह जैसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए थे और कोई लिमिटेशंस लॉ कॉलेजेस पे नहीं लगाए गए थे, कुछ मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा वीक थी, तो तब ज़ाहिर है लॉ को ऐसी फील्ड कंसिडर किया जाता था जो पहले से ओवर क्राउडेड है, इट इज़ टू मच ओवर क्राउडेड, और सेकेंडली वो लोग चाहते हैं जिनका करियर कहीं और नहीं है, तो कुछ और नहीं बन रहा तो चलें आप लॉ कर लें। Exactly. So that was the time when we were entering into the law field, और हमें ये बताया जाता था कि आप लॉ ग्रेजुएट होंगे, आपके साथ हज़ारों लोग ग्रेजुएट होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी नहीं है। आपने अगर लिटिगेशन में जाना है तो एक एक केस के लिए आपको फाइट करना, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और कम से कम 10 साल की स्ट्रगल है टू स्टार्ट अर्निंग इन द लिटिगेशन। सो आई थिंक दीज आर फ्यू मिसकॉन्सेप्शंस के जो लॉ के बारे में अनफॉर्चुनेटली अभी भी टू अ ह्यूज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन लॉ स्टूडेंट के हवाले से एज अ लॉ स्टूडेंट आई बिलीव कोई बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस नहीं थी सिवाय इसके कि इसमें नालायक बच्चे जाते हैं। Exactly. ये हमें भी बहुत सुनने को मिला है कि भाई जिसका कहीं पे एडमिशन नहीं होता ना उसका लॉ में हो जाता है, लेकिन अब आके बीइंग इनटू दिस लाइक फील्ड अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज लाइक लैट का टेस्ट देना पड़ता है, उसमें एक अच्छे वो करने पड़ते हैं, स्कोर लेना पड़ता है, और ये सारी मिसकंसेप्शंस ही थी जो बाहर बन रही थी। ओके, सो ऐसी क्या हार्डशिप्स थी, लाइक ऑब्वियसली एक सिटी से सिटी आना, ठीक है, आप इस्लामाबाद आए एंड यू स्टार्टेड योर लॉ स्कूल, और उसमें कोई हार्डशिप्स फेस की? आई थिंक हार्डशिप्स फेस करना इट इज़ समथिंग दैट टीचेस यू, और मेरे ख्याल में किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है कि आप उस अमल से गुजरें कि जहाँ आप मुश्किलात का सामना करें। तो ज़ाहिर है हर किसी की ज़िंदगी जिस तरह मुश्किलात होती हैं, इसी तरह कुछ मुश्किलात ज़ाहिर है हमने फ़ेस की हैं, और ज़ाहिर एक पाकिस्तान के हिस्से से दूसरे हिस्से में आना, और वो भी पहली दफ़ा आना, और पहले तो ये इनिशिएटिव, ये स्टेप लेना ही बहुत बड़ा फ़ैसला था। तो ज़ाहिर है ये फ़ैसला लेने के बाद जो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस यहाँ रहीं, एक तो ये कि इस्लामाबाद वाज अ सिटी आई हैड नेवर एक्सप्लोर्ड बिफोर, और इस्लामाबाद तो क्या, मैंने हैदराबाद और कराची को भी पर्सनली एक्सप्लोर नहीं किया था। सो आई थिंक जो थोड़ी चीज़ चैलेंजेस का सामना रहा वो इस तनाजुर में रहा कि एक नए शहर में एडजस्ट होने में ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना रहा, और फिर वहाँ जाकर लोगों से नेटवर्क करना, वहाँ जाकर कनेक्शंस बनाना, सो ज़ाहिर है उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस बहरहाल रहीं। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट लाइफ में सबको चैलेंजेस होती हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, बी इट अ हॉस्टल लाइफ, बी इट एनी अदर कंस्ट्रेंट्स, तो ज़ाहिर है वो सारे स्टूडेंट्स की लाइफ का हिस्सा होती हैं। सो दोज वर पार्ट ऑफ माय लाइफ टू। सो टॉकिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स, लाइक लॉ स्कूल में आने के बाद ऐसी क्या अचीवमेंट्स थी जो आपने लाइक अपने लिए वो की, और फिर एक मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में भी आपने पार्ट लिया, उसके बारे में थोड़ा सा लाइक अगर बताएं तो। मैं इनको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि एज अ लॉ स्टूडेंट फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने आप को महदूद क्लासरूम तक ना रखना। ये मैं समझता हूँ कि एक लॉ स्टूडेंट को ज़रूर समझना चाहिए कि अपने आप को कभी भी किसी सूरत में क्लासरूम तक महदूद नहीं रखना। और लेकिन उसमें भी फिर एक मिसकॉन्सेप्शन ये आ जाती है कि कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि शायद सिर्फ क्लासरूम से बाहर रहकर ही सीखा जाता है। देयर हैज़ टू बी सम बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अपनी एकेडमिक लाइफ जो क्लासरूम के अंदर है और अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो क्लास के बाहर है, उनमें एतदाल का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी शुरुआत से ये कोशिश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम ये एतदाल कायम रखूँ, जो कि किसी हद तक मैंने कोशिश की कि कायम रखूँ। और उसमें जो पहला इनिशिएटिव था दैट वाज टुवर्ड्स मूटिंग, एंड इट वाज बैक इन 2022 व्हेन आई एक्सप्लोर्ड मूटिंग, एक्चुअली 2021। सो और तब हमने मूटिंग में पार्टिसिपेट किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। The moot court competition happening at International Islamic University Islamabad, and you know it very well. That was for the batch that had around more than 100 teams. Exactly. तो और हम सब जो हमारी जो टीम थी consisting of me and two of my friends, हम सब जूनियर्स थे, and for the first time हम एक्सप्लोर कर रहे थे मूटिंग को, और हम समझ रहे थे कि शायद पहले राउंड में हमने तो बाहर आ जाना है, लेकिन एटलीस्ट हमने कुछ सीखना है। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल था दैट वाज नेवर विनिंग। एट नो पॉइंट वी हैड थॉट कि वी शैल विन
या हम एम ये करें कि हमने जीतना है, बिल्कुल भी नहीं। द ओनली थिंग वाज कि हमने इस प्रोसेस को एंजॉय करना है और इस प्रोसेस से सीखना है। तो हमारा अल्टीमेट गोल ही ये था, हम तीनों का अल्टीमेट गोल ये था। उससे फ़ायदा ये होता है कि यू डू नॉट टेक स्ट्रेस नहीं रहता, और फिर ये कि आपके अंदर में एक इत्मीनान रहता है, सेटिस्फेक्शन रहती है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। So I think that was primary thing which helped all of us to reach into the finals and then ultimately win the entire competition. There was just it, And right? no, there was intra-faculty moot court Intra-faculty. competition. Okay. So there was intra-faculty, and then Alhamdulillah, I had the privilege to participate in 14th Henry Dunant moot court competition as well. Mashallah. One of the most prestigious competitions organized by International Committee of Red Cross in Pakistan. That happened in Shangri-La Resort, Murray. तो ज़ाहिर है वो एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था कि जहाँ पर IHL को हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया, और IHL की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लॉ स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझते हैं। कई ऐसे ग्रे एरियाज़ हैं कि जिनको लॉ स्टूडेंट्स तो क्या बल्कि जो लीगल जूरिस्ट हैं वो भी अभी तक सुलझा नहीं सके। और ऐसी जब प्रपोजिशन आपके सामने आती है कि जहाँ पर ग्रे एरियाज़ हैं, ना इस पॉइंट के फेवर में आपको कोई पॉइंट लीगल पॉइंट मिल रहा है, ना ही ओपोनेंट की साइड से कोई लीगल पॉइंट मिल रहा है, आई थिंक इस ग्रे एरिया को फिर एक्सप्लोर करने के लिए और उसको फिल करने के लिए व्हेन यू अप्लाई योर क्रिएटिविटी, व्हेन यू अप्लाई योर लीगल माइंड, देन यू अल्टीमेटली लर्न टू नो how to think like a lawyer. Exactly. You know, thinking like a lawyer is something different. Different. So that is something mooting taught me, and then I also had the opportunity to participate in Flipsy Jessup International Moot Court Competition organized by ILSA, International Law Students Association, and that was another amazing experience exploring international law. I think ये पूरा सफ़र जो था, इसकी वजह से international law कम से कम मेरा favorite subject ज़रूर बन गया। Okay, so as you are part of many organizations and societies, so what do you think, how it is important for a law student to engage himself into different societies and organizations? Exposure क्या मिलता है और करना क्यों चाहिए? देखिए, ये जो हमारी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ जामियात हैं जहाँ पर हमारी अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से सोसाइटीज़ नहीं हैं, इस्टेब्लिश्ड सोसाइटीज़ नहीं हैं। आप पाकिस्तान की चंद नामवर जामियात को देख लें, वहाँ पर अगर कुछ सोसाइटीज़ हैं तो वो सियासी, पॉलिटिकल हैं या एथनिकल हैं। कोई नॉन पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी की अपनी प्रोडक्टिव सोसाइटीज़ ऐसी नहीं हैं। तो देखिए, एक जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, जामिया में दाखिल होता है, तो उसको आप एक प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे जहाँ वो अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सके, पॉजिटिवली यूज़ कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। और यूनिवर्सिटी है ही ऐसी जगह कि जहाँ पर आप अपनी लर्निंग को क्लासरूम तक कभी भी महदूद नहीं रखते। व्हेन आई हैड द चांस टू एक्सप्लोर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स ड्यूरिंग सूजी जर्नी, तो वहाँ हमने नोट किया कि वहाँ दे हैड सच अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर नेम्ड यूनियन हॉल, और यूनियन हॉल के अंदर उनके यहाँ हर सोसाइटी के लिए मीटिंग रूम्स बनाए गए हैं। हर सोसाइटी के लिए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं, या कोई वो लॉ मूट सोसाइटी है, उनके लिए अलग से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए हुए हैं, और उनको वो रिकग्नाइज करते हैं, ओन करते हैं, बजट्स प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और इनकरेज करते हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ज़ाहिर है दिस इज़ अ लर्निंग। और अब ये कोई वक्त था कि इसको एक्स्ट्रा करिकुलर कहा जाता था, लेकिन नाउ इट हैज़ बिकम को करिकुलर, सो इट इज़ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। मैं समझता हूँ कि कम से कम सोशल साइंसेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये लाजमी है कि वो इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग which I realized at a very early stage, and which ultimately attracted me towards Law Students Council. And I think जो लॉ डिग्री ऐसी है कि लाइक जब तक आप इसको प्रैक्टिकली ना एक्सपीरियंस करो, कुछ ना करो, तो लाइक आपको पता ही नहीं लग सकता होता कि आप किस फील्ड में हैं और आप करना क्या चाह रहे हो। सो जैसे अभी आपने LSE के बारे में बताया, माशाल्लाह यू आर द चेयरमैन, सो थोड़ा बताएं LSE के बारे में, व्हाट इज़ इट और किसके लिए काम कर रहे हैं? Law Students Council was established in 2012. 2012 में वजूद आई और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इसका बुनियाद रखा गया। अल्टीमेट पर्पज़ ये था, या जो ऑब्जेक्टिव लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल का था, वो ये था कि पाकिस्तान में लीगल माइंड्स को नरिश करना है, लीगल माइंड्स को नर्चर करना है। और आपको पता है कि 2012 के जो हालात थे, उससे पहले वकला तहरीकें चल चुकी थी, जुडिशरी पे हमले हो चुके थे, यानी हमारा जो लीगल सिस्टम था उसमें हज़ारों लेकुनाज एग्जिस्ट कर रहे थे।
और फिर जो सबसे बड़ा लेकुना वो ये था कि वहाँ पर हमारे लीगल सिस्टम के लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था कि जहाँ से हम प्रोडक्टिव लीगल माइंड्स उनको दे सकें, अपने सिस्टम को दे सकें। जिस तरह मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का एक पूरा निज़ाम है जिससे हम डॉक्टर्स अच्छे प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स को, इसी तरह लीगल माइंड्स के लिए, लॉयर्स के लिए भी ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। आई थिंक अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्टिव रखकर कुछ स्टूडेंट्स ने, हमारे फाउंडर्स ने इस चीज़ का बुनियाद रखा और कई सालों से इसने अपनी स्ट्रगल की जर्नी रही। ज़ाहिर है चैलेंजेस, हार्डशिप्स रही इनिशियली, लेकिन ये कि मैं लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल से मुतासिर 2019 में हुआ और उसके बाद ऑनवर्ड्स लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल को ज्वाइन किया एज ए क्लास कोऑर्डिनेटर। फिर अनफॉर्चुनेटली एंड आई हैड द प्रिविलेज of being part of cabinet LSC as secretary information and then as general secretary and finally you are seeing me as a chairman। तो मैं समझता हूँ कि जो 3-4 साल का सफ़र था, लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल वाहिद ऑर्गेनाइजेशन जिनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जज्बाती ताल्लुक़ है, और वो जज्बाती ताल्लुक़ इस तनाजुर में है कि मुझे अगर बहैसियत मेंबर काम करने का मौका दिया जाए तो वो भी मैं करूँगा। द रीज़न बीइंग कि वी आर विजनरी मेंबर्स, हम उसके विजन के साथ बड़े सिंसियर हैं, और वो जो विजन है वो कमाल का विजन है कि आप अपने लीगल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लाजमी है कि एफिशिएंट लीगल माइंड्स अपने सिस्टम को प्रोवाइड करें। एंड एज यू नो कि जस्टिस जो होता है, इंसाफ जो होता है, वो किसी भी मुआशरे के लिए एक बुनियादी सुतून होता है, दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। लेकिन जो हमारे जो देखें जो भी कामयाब मुआशरा होता है वो इंसाफ की बुनियादों पर खड़ा होता है, और इंसाफ की बुनियादों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सिस्टम को काबिल वकला दें, काबिल जजेस दें, काबिल एडजुडिकेटर्स दें, काबिल आर्बिट्रेटर्स दें और काबिल मीडिएटर्स दें। ओवरऑल लीगल प्रोफेशन में मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत बड़ा गैप मौजूद था, और इसी तनाजुर में हमने लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल को ना सिर्फ कोशिश की है कि उसको एक्सपैंड करें बल्कि उसको इम्प्रूव भी करें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म हो लीगल इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होने की और ख़ुद को इम्प्रूव करने की, नर्चर करने की और नरिश करने की। That's amazing. Or tell me, coming towards what LSC is doing, like ऐसे क्या चीज़ें हैं जो वो ऑर्गेनाइज कर रही है जो बाकी लाइक ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज़ से डिफरेंट हैं? ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट LSC इज़ प्रोवाइडिंग टू लॉ स्टूडेंट्स? मैं समझता हूँ कि लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल की जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो ये है कि हमारी कैबिनेट में जितने भी लॉ स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम कैबिनेट मेंबर्स को रिप्लेस करें और आने वाली कैबिनेट में दूसरे मेंबर्स आएँ, उनको हमेशा हमने प्रोफेशनलिज्म सिखाई है। उनको हमेशा सिखाया है कि वकील होना वो नहीं है जो आप मीडिया पर देखते हैं। वकील होना ये नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बार बन जाएं तो आप हवाई फायरिंग करना शुरू कर दें सड़कों पर। दिस इज़ नॉट समथिंग अ लॉयर शुड बी। वकील की जो पहचान है वो है ही उसकी प्रोफेशनलिज्म, वो है ही उसकी उसकी मोरालिटी, उसकी पहचान होती है। आप कभी भी वकील को, अच्छे वकील को, काबिल वकला को नहीं देखेंगे कि वो गुरूर और तकब्बर में हो, उनको हमेशा आप आजिज देखेंगे। दिस इज द प्राइमरी क्वालिटी ऑफ अ लॉयर। तो हमने कोशिश की है कि लॉ स्टूडेंट्स को कम से कम ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएं, और इन मकासद के लिए ज़ाहिर हमने मल्टीपल इवेंट्स किए हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने कोलैबोरेट किया है। ICRC के साथ हमने IHL को एक्सप्लोर किया कोलैबोरेट करके, एंड देन हमने मल्टीपल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाए कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को मौका मिले कि वो देखें कि एज ए लॉयर आप केस प्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर लीगल एथिक्स क्या होते हैं किसी भी कोर्ट में केस प्रेजेंट करने के। तो ये चंद चीज़ें जो मेरे ख्याल से हमारा प्राइमरी फोकस रही हैं। लेकिन अगर आप हमारे इवेंट्स के बारे में पूछें तो ज़ाहिर है इवेंट्स में हमारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और बेशुमार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी अवेलेबल है। लेकिन ज़ाहिर है हमारा फोकस जो है दैट इज़ नर्चरिंग लॉ स्टूडेंट्स। सो ये इवेंट्स वगैरह कहाँ पे होते हैं? लाइक जो लोग लाइक इस्लामाबाद में ऑब्वियसली नहीं हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं कि वो इनको ज्वाइन करें और लाइक इनसे एक्सपीरियंस गेन करें? अभी तक हमारी चूँकि वर्किंग सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक महदूद है और इतने ज़्यादा रिसोर्स मौजूद नहीं हैं कि उसको पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड किया जाए, लेकिन इंशाल्लाह हमारे इरादे, हमारे अज़ाइम यही हैं कि इनको एक्सपेंड किया जाए, पूरे इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड किया जाए। लेकिन हमने जो ज़ाहिर है ये चैलेंजेस रही कि लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमने पूरे पाकिस्तान में उनको एड्रेस करना है, तो किसी न किसी तरह से इस चीज़ का सलूशन हमने ढूंढना था।
और उसका सोल्यूशन हमने लाइव वेबिनार्स के थ्रू हमने कोशिश की कि उनको एजुकेट करें। उसके अलावा मल्टीपल हमने वर्कशॉप्स रखी हैं, लीगल एथिक्स पे, आर्ट ऑफ मूटिंग पे। हमने कोशिश कर रहे हैं कि वेरी सून इंशाल्लाह हम एक मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन ऑनलाइन भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वर्चुअल, कि ज़ाहिर है जो पूरे पाकिस्तान में जितने लॉ स्टूडेंट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, उससे अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। लेकिन हमारी वेबिनार सीरीज़, एनुअल वेबिनार सीरीज़ होती है जो समर्स में होती हैं, उनमें हम पाकिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि इस मरतबा हमने इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया, इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं लीगल सिस्टम के उनको हम डिस्कस कर सकें, उन ग्रे एरियाज़ को डिस्कस कर सकें और फिर उनके सोल्यूशन की तरफ बात कर सकें। तो हमने कोशिश की है कि वो जो एक लीगल इंडस्ट्री और लॉ स्टूडेंट्स के दरमियान जो गैप है उस चीज़ को हम रिड्यूस करें और उस चीज़ को कम करें और उनका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन कायम करवाएं। सो दैट वाज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इट। अच्छा, ये इवेंट्स होते कहाँ पे हैं? लाइक इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ में ही या कहीं और? देखिए, हमारा जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो यही होता है कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मैक्सिमम इंगेज करें, और इस तनाज़ुर में हमने ज़ाहिर है हमारे मल्टीपल इवेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और इन द वेरी नियर फ्यूचर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हमारा एक इवेंट प्लान है। लेकिन उसके अलावा हमने कोशिश की है कि लॉ स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने कहा, कि लीगल इंडस्ट्री के साथ, बार के साथ कनेक्शन हम वो कायम रखें। सो उस पर्पज़ के लिए हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं मल्टीपल इवेंट्स के लिए। रिसेंटली हमने फैमिली लॉज पे इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेट करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इन दी रेड जोन सेक्रेटरीट वहाँ ऑर्गेनाइज करवाए हैं इवेंट्स। और उसके अलावा वी ऑर्गेनाइज अ मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन एट नेशनल लॉ कॉलेज रावलपिंडी। हमारी फेयरवेल्स मल्टीपल जगहों पर होती रही हैं। उसके अलावा वी ऑल्सो रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड a very prestigious webinar workshop on with the collaboration of Chartered Institute of Arbitration, which is a very prestigious organization based in London. उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ हमने जो कम्युनिकेशन किया और वहाँ हमने ऑर्गेनाइज करवाया, और उसके बाद लॉ स्टूडेंट्स को हमने हाई कोर्ट्स की हियरिंग्स भी करवाई। द पर्पज़ इज़ के उन चीज़ों से वो अवेयर हों जिनसे वो बाद में उनको अवेयर होना है। ज़ाहिर है अल्टीमेटली लॉ स्टूडेंट्स ने इसी फील्ड में जाना है। हम चाहते हैं कि अपनी स्टूडेंट जर्नी के दौरान ही वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, उस चीज़ को एक्सप्लोर करें कि एक यंग लॉयर को जब वो बार में जाते हैं उनको क्या चैलेंजेस आती हैं। हमने अल्टीमेटली कई स्टूडेंट्स को देखा है कि जो 5 साल 6 साल लगा देते हैं सिर्फ ये समझने में कि फ़लाँ कोर्ट कहाँ है और फ़लाँ कोर्ट कहाँ है, सिर्फ ये चीज़ समझने में। तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने कोशिश की है कि हमारे जो इवेंट्स हैं वो डिफरेंट वैसे तो वेन्यूज़ पर होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी बार एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेट करके और बार एसोसिएशन के साथ ही। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक ऑब्वियसली आप बेसिक जो मोटिव होता है वो लॉ स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्सपोजर्स दिलाना होता है, और जिस तरह लाइक आप वेन्यूज़ बता रहे हैं इस तरह, तो आई गेस जैसे हाई कोर्ट में एक रिसेंट इवेंट था दैट वाज लाइक कोलैबोरेशन विद सियाब, एंड उधर जैसे लीगल प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, फेमिलराइज होते हैं लोग, तो स्टूडेंट्स को भी ना एक एक्साइटमेंट होती है कि हम ठीक पाथ पे हैं, हम लॉ मतलब सामने से एक चीज़ को देख रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। सो हाउ आर यू मैनेजिंग योर स्टडीज़ विद लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल? I think this should not be a challenge for law student to manage academics with co-curricular activities. और ये सवाल, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बल्कि हर दूसरे लॉ स्टूडेंट का ये सवाल मुझसे यही होता है कि आप इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ एकेडमिक्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग अ लॉ स्टूडेंट नीड्स टू लर्न। अल्टीमेटली आपने ये करना है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे या सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करें, बिकॉज देन दे वुड बी समथिंग जो कि फ्लॉज या लेक्स रह जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में रह जाएंगे, और ये चीज़ें आपको एहसास होगा जब आप फील्ड में इंटर होंगे और जब आप देखेंगे कि आपने तो कोई कनेक्शंस नहीं बनाए, नेटवर्किंग नहीं की, इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया, तब आपको एहसास होगा कि ये चीज़ हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। लेकिन आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने इब्तिदा में ही अर्ज़ किया, कि वो एतदाल का होना बहुत ज़रूरी है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी जो क्लासरूम की लर्निंग है, तालीम है, एकेडमिक्स है, उसको भी टाइम देना। और लॉ सब्जेक्ट्स में समझता हूँ कि इट इज़ नॉट समथिंग कि जो बहुत ही कोई इंटेलिजेंट माइंड के लिए बने हों। लॉ सब्जेक्ट्स आर फॉर एवरेज माइंड, और उसमें
the only thing law student need to do is read a lot, and this is I recommend a lot. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जजमेंट्स को पढ़ें, स्टैट्यूट्स को पढ़ें, उनको समझें, और उसके अलावा भी जो रीडिंग है वो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज एज वी से a good lawyer is someone who knows about politics, about culture, about literature, about poetry, and also knows a little about law. तो जो एक उसके बाद डाइवर्स पर्सनैलिटी बनती है, वो एक कामयाब वकील की पर्सनैलिटी बनती है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि ये बैलेंस कायम रखना चाहिए। और उसके लिए, उस बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि मैं जो टिप्स सब स्टूडेंट्स को देता हूँ वो ये कि खुद एहतसाबी ज़रूर करें। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, किस चीज़ पे कम दे रहा हूँ, और फिर अपने लेकुनास को, अपने फ्लॉज को आइडेंटिफाई करें, फिर उन पे काम करना शुरू करें, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेज कि जहाँ से आप जो वो एतदाल, जो बैलेंस है वो कायम करना सीख जाएंगे। Okay. So like it's a student-led organization, and mashallah, they are working like really like independently, and हर चीज़ जिस तरह cater की जा रही है, एक exposure जो law students को दिया जा रहा है, I think that's the must for a law student. Absolutely. So आप लोग ज़रूर सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं और LSE के तमाम पेजेस को देखें और फॉलो करें, और उसके अलावा भी इवेंट्स में पार्ट लें। वेबिनार सीरीज़ आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग, यू कैन वॉच देम। और एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सिर्फ इस्लामाबाद के लोग नहीं इसको वो कर सकते, बल्कि सब लोग वेबिनार्स और लाइव सीरीज़ के थ्रू जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, and you guys are doing a great work in promoting like law schools और एक exposure जो ऐसा जिसमें legal professionals के साथ connect किया जाता है। चलिए, one of your most biggest achievement, that is SUSE alumni, you are the SUSE alumni of 2023, so उसके बारे में बात करते हैं कि what student who may not be familiar with what SUSE is, उनके बारे में बताएं what this program is, who is sponsoring it, और ऐसे क्या like aspects हैं इसके जो नहीं पता किसी को। I think when I talked about my life as a law student, one of the primary objective that I had in my mind was कि as a law student मैंने हर चीज़ को explore करना है, हर चीज़ को experience करना है, और this was something which took me towards mooting के बाद research publications, उसके बाद organizing seminars, workshops, networking with people, तो कोशिश थी कि हर चीज़ को explore किया जाए। Exchange program was something that was remaining, that was left. So that was the reason I went for SUSE, और SUSE के हवाले से मैं ऑडियंस को बताता चलूँ कि it stands for Study of US Institutes. ये US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव है। अक्सर पाकिस्तानी लॉ स्टूडेंट्स की या स्टूडेंट्स की ओवरऑल मिसकॉन्सेप्शन है कि SUSE प्रोग्राम इज समथिंग ओनली फॉर पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। SUSE इज़ अ ग्लोबल प्रोग्राम, और उसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वॉल्व हैं, और मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो 3 प्रोग्राम्स हैं। एक तो SUSE फॉर स्टूडेंट लीडर्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑन कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में होता है, और उसका प्राइमरी फोकस पब्लिक पॉलिसी होता है। द सेकेंड वन इज़ SUSE Madeline K. Albright, which is for young women leaders, और उसका फोकस वुमेन लीडरशिप पे होता है प्राइमरली। एंड द थर्ड प्रोग्राम which for Pakistan is SUSE Scholars, और उसमें यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और नॉमिनेशन बेस्ड उनकी सिलेक्शन होती है, और हर साल पाकिस्तान से एक प्रोफेसर वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम्स में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन किसी न किसी तरह से होती है। SUSE for Public Policy Making is a program exclusively for Pakistan. जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एंड इट इज़ डिज़ाइंड इन अ वे कि उसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में होता है, जिसमें आप पाकिस्तान की और US की पब्लिक पॉलिसीज़ को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर इनएफिशिएंसीज हैं, कहाँ पर हम पॉलिसीज़ को एफिशिएंट बना सकते हैं। सो उसके अलावा जो वुमेन लीडर्स हैं उसमें पाकिस्तान से एनुअली 4 फीमेल स्टूडेंट्स, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स सेलेक्ट होती हैं, और वो पार्टिसिपेट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में, दैट हैपेंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, एंड SUSE फॉर स्कॉलर्स हैपेंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। सो दीज प्रोग्राम्स आर फॉर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और टारगेट ये होता है कि वो स्टूडेंट आप टाइटल से देखें SUSE फॉर स्टूडेंट लीडर्स, and student leaders shows someone who is
who has good academic records, as well as is managing to contribute in society as a student leader. So this is a primary requirement to apply. और इसके अलावा अगर application process पे हम बात करेंगे तो वी विल टॉक इन डिटेल के एप्लीकेशन के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल मद्देनज़र रखनी चाहिए. वन ऑफ देम इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन इट. सो आपको कैसे पता लगा सूसी के बारे में, और आपने कब अप्लाई किया, और लाइक किस उस पे किया कि लाइक मुझे अब करना चाहिए, और किसने बताया आपको? आई थिंक रिसर्चिंग इज़ समथिंग एवरी स्टूडेंट शुड बी गुड एट. और वो चाहे स्कॉलरशिप्स के लिए हो, चाहे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए हो, चाहे दीगर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हो. तो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन अवेल इट. दिस वाज माय स्ट्रेटजी. So I always looked for opportunities, and in the meanwhile I found about UGrade, which is a one semester exchange programs. When I was in third semester back in 2020 during the COVID waves, I applied for UGrade, and that was the very first time, the very newbie applying for UGrade. तो ज़ाहिर है कई ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में पता नहीं होता, एहसास नहीं होता कि ये चीज़ें किस तरह से टैकल की जाएं. So I applied for UGrade, and then I was luckily shortlisted for the interview, and then I got rejected after the interview. Okay. So that was a heartbreak as well. लेकिन ये कि that is something that taught me a lot कि how to tackle the interview. और फिर उस चीज़ को I utilized that experience as a learning experience, and then I looked for another opportunity which was SUSI. And public policy definitely is my interest, और law students को particularly इस चीज़ में बहुत ज़्यादा interest होता है compared to public policy making में. So this is something which drew me towards SUSI, and since SUSI happens during summers, तो आपके academics की भी बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होती, effect नहीं होती. So I think this was the reason कि SUSI seemed to be an excellent and perfect opportunity for me. Obviously semester का कोई बीच में हर्ज नहीं होता, और आप एक अपने पेस के साथ, वो तो वैसे भी लाइक समर वेकेशंस होते हैं तो आप इन चीज़ों में पार्ट ले सकते हो. सो टॉकिंग अबाउट द प्री रिक्विजिट्स, लाइक इस प्रोग्राम के आप थोड़ा वो स्टेप बाय स्टेप अगर बताएं तो. श्योर. SUSI प्रोग्राम ज़ाहिर है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए. तो फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर के अलावा जो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. दे आर एलिजिबल. फर्स्ट एंड लास्ट के अलावा. अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. और सिमिलरली इफ यू आर इन लास्ट ईयर यू कैन नॉट अप्लाई. मिडिल ईयर्स में अगर आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 5 ईयर्स है सो यू कैन अप्लाई टिल 4th ईयर. अच्छा, व्हाई इज इट सो? लाइक लास्ट ईयर वाले क्यों नहीं कर सकते, फर्स्ट वाले क्यों नहीं कर सकते? Actually you would laugh when I tell you the reason. One of the reason, there are multiple reasons, but one of them is कि एक मरतबा SUSI प्रोग्राम हुआ था और उसमें some of the students tried to run to Canada from USA. Okay. So but this is not the only reason. This is one of the reason. Ultimate reason is कि वहाँ से ज़ाहिर आप जो कुछ सीखते हैं, कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, कैंपस लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, come back to Pakistan and then teach that to your fellows in university. That is another reason कि वो लास्ट ईयर वालों को एलिजिबल नहीं करते हैं, ताकि आप वापस आकर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें. और फिर दिस इज़ समथिंग एज अ श्योरिटी टुवर्ड्स देम कि आप वापस ज़रूर आएंगे. सो दिस इज़ द रीज़न वाई फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल. लेकिन अगर आप 4 years डिग्री प्रोग्राम में हैं, अंडरग्रेड डिग्री प्रोग्राम में हैं, तो यू कैन अप्लाई इन योर सेकेंड ईयर एंड इन योर थर्ड ईयर. सो वो एनुअली अनाउंस होते हैं. सो यू हैव 2 opportunities इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर अंडरग्रेड डिग्रीज. यू हैव 2 opportunities कि आप जहाँ अप्लाई कर सकते हैं SUSI में. उसके अलावा जो प्री रिक्विजिट्स हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर के बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. और फ्लुएंट होने से मुराद ये नहीं कि आपका एक्सेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. मेरा एक्सेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि बाय बीइंग फ्लुएंट इज मीन कि आपको कम्युनिकेशन करना आता हो. You should know how to communicate in English language. If you are able to understand English language, speak English language, read and understand English language, so that's more than enough. And then of course you should be a student leader. आपको लीडरशिप क्वालिटीज शो करनी है, प्रूव करनी है, और वो प्रूव करने के लिए ज़ाहिर है यू कैन शो देम दैट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दीज को करिकुलर एक्टिविटीज़. मतलब इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट के जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जो हैं वो एग्जैक्टली ऑलरेडी हैं और एक लीडरशिप उसमें है. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है. दिस इज़ वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स. और कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमने किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया आज तक, तो हम क्या करें SUSI के लिए. मैंने कहा जी आप अप्लाई ना करें. द रीजन इज दिस इज प्री रिक्विजिट. सिंपल, अप्लाई ना करें. रिक्वायर्ड. दिस इज नॉट समथिंग ऑप्शनल.
तो दैट इज़ द रीज़न वी इनकरेज स्टूडेंट्स अ लॉट कि इस चीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी और साथ ही अपनी एकेडमिक्स पे भी फोकस रहा करें. सो आई थिंक दीज आर 3 प्री रिक्विजिट्स. उसके अलावा कोई ख़ास प्री रिक्विजिट्स नहीं है. उसके बाद एप्लीकेशन का एक लेंथी प्रोसेस है, इंटरव्यू का एक प्रोसेस है, एंड देन यू फाइनली गेट शॉर्टलिस्टेड. चलें, लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन प्रोसेस. लाइक उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और लाइक इसकी टाइमलाइन भी बता दें प्लीज़. अच्छा, सूजी प्रोग्राम अनाउंस होता है अक्टूबर के एंड में, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, और दिस कंटिन्यूज टिल नवंबर. अक्टूबर यानी अराउंड ये अक्टूबर में अनाउंस होता है और अक्टूबर के एंड तक इसकी you just have 1 month to like apply. Yes, around 1 month. समटाइम्स ये भी होता है कि नवंबर के बिल्कुल स्टार्ट में उनकी डेडलाइन होती है. Okay. सो इस टाइम में आपने अप्लाई करना होता है, एंड देन यू गेट शॉर्ट लिस्टेड. इफ़ यू अप्लाई इट वेरी वेल, उसमें ज़ाहिर एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर सिलेक्शन होती है. इफ़ यू अप्लाई इट फॉर वेल, देन यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है अराउंड इन द मंथ ऑफ मार्च. Okay, March. सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वेट Very long. करना पड़ता है. और मार्च में फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, बाय द मिड ऑफ मार्च हो जाते हैं. और इंटरव्यूज़ के कुछ ही टाइम बाद आपको फाइनली सिलेक्शन की कॉल आ जाती है, या फिर इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट, तो फिर वो आपको बता देते हैं कि आप सिलेक्ट नहीं हुए. और इसमें भी सिलेक्शन के 2 मेथड्स हैं एज ऑलवेज. कुछ हैं जो प्रिंसिपल कैंडिडेट के तौर पर सिलेक्शन होते हैं, कुछ हैं वो अल्टरनेट कैंडिडेट के तौर पर उनकी सिलेक्शन होती है. So if you are a primary candidate, then you are definitely going to US, subject to your visa clearance. Okay. अगर visa clearance हो जाती है, definitely you are going to SUSI program. लेकिन if you are an alternate candidate, तो ज़ाहिर है that depends कि किसी की अगर visa clearance नहीं हुई, किसी का visa का issue आ गया है, कोई नहीं जा सका, then you would be going in their place. Okay. So अगर मैं बात करूँ कि one of the most crucial aspect is personal statement. तो उसके बारे में बताएं कि लाइक इसको कैसे लिखा जाए. और इसलिए पहला फैक्टर तो होता है कि आपने रियल रहना है, ठीक है, जितना उसको रियल रखेंगे उतना होगा. लेकिन उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा शेयर करें कि लाइक पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर की जाएं. तो I think for SUSI there are 2 things. एक तो पर्सनल स्टेटमेंट भी है, और साथ में आपसे 2 सवाल पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के रिलेवेंट पूछे जाते हैं. ओके. सो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सूजी के हवाले से इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि सूजी SOP को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. दिस इज समथिंग आई अप्लाइड एज अ स्ट्रेटजी. फर्स्टली, इन द वेरी फर्स्ट पैरा यू टॉक अबाउट योर स्टोरी, यू टेल योर स्टोरी. आप बताते हैं कि मेरी स्टार्टिंग कहाँ से है, मेरी जर्नी क्या है, मेरी स्ट्रगल क्या रही है. दिस इज समथिंग, दीज आर द हार्डशिप्स आई फेस्ड फ्रॉम द बिगिनिंग. सो हमेशा स्टार्ट विथ योर स्टोरी, एंड योर स्टोरी शुड बी रियल, should be unique, should be something that shows you as a strong personality. So start with your story, start with your struggle, start with your journey, and then tell about your interests, tell about your academic background thoda sa. Or middle mein, by the mid of SOP, you should be talking about your objective and your goal. और सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इसी पार्ट में करते हैं. द रीज़न इज़ कि मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, और जितनी SOPs रिव्यू की हैं, कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, दैट इज़ माई अल्टीमेट गोल एंड सर्व द एंटायर ह्यूमैनिटी. आपने ठीक है डॉक्टर का बता दिया और एंटायर ह्यूमैनिटी की सर्विस का भी बता दिया, लेकिन यू आर नॉट एक्चुअली स्पेसिफिक अबाउट योर गोल, यू आर नॉट एक्चुअली क्लियर अबाउट योर गोल. ठीक है, आपने ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है, लेकिन कैसे करनी है. डॉक्टर बनना है, लेकिन किस फील्ड में जाकर डॉक्टर बनना है. So rather than telling that, if you tell them that I want to be a cardiac surgeon, मैं इस particular field में research करना चाहता हूँ, इसी में excel करना चाहता हूँ, that shows that you're very much clear about your goal. This is something very important, और mostly students इस चीज़ को miss करते हैं. So instead of telling that I want to become a lawyer, tell them you want to excel yourself in the field of arbitration, and then want to appear in the International Court of Arbitration. Okay. So this is very important. And last part, connect the SUSI experience with your goal. Tell them that SUSI experience is very important for me to achieve my goal. And उसमें ज़ाहिर है आप अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी जो गोल है उसको यूटिलाइज करते हुए कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कायम करते हैं SUSI के साथ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग दैट आई वांट टू बिकम अ ह्यूमन राइट्स लॉयर, आई कैन कनेक्ट इट टू SUSI experience by saying that US is society definitely that has high respect for human rights, for individual dignity, for animal rights, and for even for the environment overall.
So if I go and observe such a society at this stage, I would be able to, learn more about the implementation of fundamental rights in the society and how those are respected in the society. और फिर उनका legal system कैसे उनको bound करता है. उसके अलावा if I'm able to learn more about public policy making, I will be able to make policies for the efficient implementation of fundamental rights in my country. So this is something कि जहाँ मैंने अपने गोल को सूजी एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट किया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो लास्ट में आप उसको कंक्लूड करें एंड इन द वेरी लास्ट डू गिव अ लिटिल टच अबाउट द यूएस कल्चर, यूएस सोसाइटी, योर एडमिरेशन, योर इंस्पिरेशन, व्हाई डू यू विश टू गो फॉर यूएसए एंड व्हाई डू यू विश टू अप्लाई फॉर सूजी. आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं जिन पर अगर फोकस करके एसओपी बनाई जाए तो दैट वुड बी एन एक्सेलेंट एसओपी. Okay, that was like insightful. Okay, इंटरव्यू के बारे में बताएं कि उसमें क्या like स्टेप्स थे और उसको कैसे क्लियर किया जाए. सूजी जैसे आपको खुद मसला हुआ था यूग्रेड के हाँ, इंटरव्यू yes, में, yes. तो उनके साथ अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ऐसी क्या लाइक डिफरेंसेस थे जो आपने यूग्रेड में दिए एंड यू थॉट कि नहीं ये चीज़ें जो है ना मुझे अब मतलब इसमें जाके अवॉइड करनी है एंड देन आई हैव टू लाइक बी क्लियर फॉर दिस. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है. यूग्रेड का और सूजी का एक्सपीरियंस इंटरव्यू का, बोथ इंटरव्यूज हैपन वर्चुअली. ओके. और बहुत कम होता है कि 1% इंटरव्यूज, तो मोस्टली वो वर्चुअली आजकल कंडक्ट कर रहे हैं. तो व्हाट हैपेंड इन यूग्रेड इंटरव्यू वाज कि मुझसे सवालात पूछे जाते थे. फॉर एग्जांपल, विल यू बी एबल टू एडजस्ट विथ योर कल्चरल शॉक्स इन यूएसए, द डिफरेंस ऑफ कल्चर, द डिफरेंस ऑफ फूड देयर, एंड माय रिस्पांस वाज यस, आई विल बी एबल टू डू दिस. This is my response in UGrade. But later on, I realized this is an insufficient response. Exactly. And your response should be, definitely it should be short. It should not be too long. लेकिन वो किसी न किसी basis पर होना चाहिए और वो basis आपने prove करने होते हैं. So, for example, if the question is being asked कि what do you plan to do for society? So, for example, you cannot say that I want to promote human rights in society. You have to tell them how do you want to do this. You have to tell them I will do this, I will form an NGO, I will build a team of it, I will identify lacunas in the legal system pertaining to human rights. So वो सारी चीज़ें आपने फिर साथ ही बतानी होती हैं. What simply means कि आप जो आंसर दे रहे हैं उस आंसर के साथ उस आंसर को जस्टिफाई भी करना होता है. So that justification is an important part. और उसके अलावा जो short tips that I give to students is wear semi-formal dress, do not be very much formal. That is not something appreciated too much by the Americans. Okay. So you can be either informal or semi-formal maximum. और उसके अलावा be real, be honest, and be very relaxed. Americans are usually very much friendly, even though if they are taking an interview. So be very friendly. If you have any question, do ask them. If you do not know the answer of anything, simply apologize them. This is not something that would play a negative role. So these are something that need to be kept in mind while you are appearing in interview. Be precise, be straightforward, Yes. be real. Exactly. And I think like काफ़ी फ़ायदेमंद हैं जो आपने टिप्स दिए हैं सबके Absolutely. And लिए. more importantly, justify your answers. Justify your answers. Okay, so now coming towards your experience, आप वहाँ चले गए, ठीक है, आपके ऐसे कोई कल्चरल शॉक्स लगे लाइक वहाँ जाके डिफरेंट कल्चर के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना और सब कुछ? I think cultural shocks बिल्कुल ज़ाहिर है. आप पाकिस्तान से और फिर वेस्टर्न कल्चर में जाना, वेस्टर्न एनवायरनमेंट में जाना, so definitely there are cultural shocks जो कि आप एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन I think most of us were mentally prepared for it, and the reason was we had a 2-day long pre-departure orientation. Okay. तो आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो उससे पहले प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन होती है जो कि यूएस एम्बेसी या यूएस कॉन्सुलेट जनरल वाले ऑर्गेनाइज करते हैं. पाकिस्तान में? यस, इन पाकिस्तान. सो हमारी पीडीओ कराची में हुई थी, ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएस कॉन्सुलेट जनरल इन कराची एंड देन इन कोलैबोरेशन विद यूएसीएफपी. तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये अमेरिका में कैंपस सिस्टम कैसा है, अमेरिका में कौन सी चीज़ें जिनसे आपने बचना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है प्रॉबेबली, कौन से ऐसे कल्चरल शॉक्स हैं जो आप वहाँ जाकर ऑब्जर्व करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. और उसके अलावा कुछ टिप्स भी दी जाती हैं कि आप ये चीज़ करें और इसको इस तरह से करें. So I think that was something कि हम मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड थे, लेकिन डेफिनेटली गोइंग इनटू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, इनटू अ डिफरेंट कल्चर, तो ज़ाहिर कल्चरल शॉक्स आर समथिंग दैट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर. Okay, your opinion in difference
of like education in US and Pakistan जो like आपको लगा वहाँ पे कि like that's a big difference. Obviously आप एक पाकिस्तानी environment में से गए हुए थे, being studying into an environment जो कि like American सारा system होता है और सब कुछ, तो उसमें क्या ऐसी क्या differences हैं जो आपको लगे कि like they needs to be implied in Pakistan also? I think there's a huge gap between the Pakistani education system and the American education system. हालांकि हम अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल आइडियलाइज नहीं कर सकते इन द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन फिर भी जो गैप है दैट इज़ टू मच. और द रीज़न इज देयर आर मल्टीपल रीजंस के जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इफ़ वी बिकम वेरी शॉर्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाइम, वन ऑफ द रीजंस आई जस्ट डिस्कस्ड कि वहाँ पर लर्निंग इज़ नॉट लिमिटेड टू क्लासरूम्स. चाहे, और ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, ये कॉलेजेस में भी ऐसा ही है, क्लासेस में ऐसा है, प्राइमरी स्कूल्स में बल्कि ऐसा ही है. और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है जो ख़ास तौर पे प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, जो ख़ुद को बहुत एफिशिएंट क्लेम करते हैं, उनके यहाँ भी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे यहाँ जो एवरेज प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में, एक तो एलीट एजुकेशन सिस्टम है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं. उसमें अगर आप बच्चों को देखें तो वो अगर बच्चों को केजी में भेज रहे हैं तो केजी में वो उनको एबीसी पढ़ा रहे हैं. Exactly. और देखें वो किंडरगार्टन है समथिंग कि जहाँ पर आपने उनको खेलना सिखाना है बेसिकली, और हेल्दी गेम्स सिखाने हैं उनको सिखाना है कि कैसे हेल्दी टॉयज़ के साथ आप सीख सकते हैं. हमारा एक सेशन हुआ था ऑन अर्ली इंटरवेंशन एंड ऑस्टिसिज्म, जहाँ पर हमने सीखा था कि आप बच्चों की जो तरबियत है वो खिलौनों के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, खिलौनों के ज़रिए आप उनको हेल्दी कैसे बना सकते हैं. सो दिस इज़ समथिंग कि जहाँ तक उनका फोकस यहाँ पर है और हमारा फोकस उससे बहुत नीचे है. सो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस. और उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. यू वुड फाइंड वेल ट्रेंड टीचर्स वहाँ पर इन द एंटायर एजुकेशन सिस्टम. वी हैड द प्रिविलेज टू विजिट वन ऑफ द स्कूल्स बैक इन एमर्स्ट, और उसमें हमने अंदाज़ा लगाया कि जो वहाँ के टीचर्स थे दे वर सुपर ट्रेंड, और उनकी जो टीचिंग मैथडोलॉजी है दैट इज़ एक्चुअली वेरी एफिशिएंट. And I did ask one of the professors, what is the methodology that you apply? And they said the methodology that we rely on is ICAP methodology. ICAP is basically it is an assessment methodology जिससे आप बता सकते हैं कि क्लासरूम की लर्निंग जो हो रही है वो कितनी आइडियल है. Firstly, the learning should be interactive. ICAP starts with interactive. So हमारे यहाँ जब भी क्लासेस होते थे किसी भी टॉपिक पर, तो सबसे पहले हमारा ओपिनियन लिया जाता था. What do you think about this? Okay, what are the marginalized communities in Pakistan? Okay, these are the marginalized communities. What solutions do you propose for them? ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती. वहाँ पर आप बेसिकली स्टूडेंट्स को कंपेल कर रहे हैं कि आप क्रिएटिवली सोचें, जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी सोचें और उनके सोल्यूशन के बारे में भी सोचें. सो फर्स्टली इट वाज इंटरैक्टिव, देन इट वाज कंस्ट्रक्टिव. एज आई मेंशन कि इस तरह की हेल्दी डिस्कशंस होती थी, डिबेट्स होती थी, और टीचर्स के साथ डिसएग्री करते थे. सो दे एग्री टू डिसएग्री. So this was the second thing. And then third part is active learning, जो हमारे यहाँ क्लासरूम्स में होती है. हमारे यहाँ क्लासरूम्स में सिर्फ एक्टिव लर्निंग होती है, लेकिन एक्टिव लर्निंग इज बेसिकली 30% ऑफ योर इंटायर क्लास. तो अगर 1 घंटे की क्लास हो रही है उसमें 30 मिनट्स आपकी ओवरऑल इट शुड बी 20 मिनट्स या 15 मिनट्स आपकी एक्टिव लर्निंग होगी. एंड देन देयर शुड बी पैसिव लर्निंग. वो जाहिर है आपकी पेयर एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ बनाकर वो दी जाती थी. तो हमें क्लासरूम में हमेशा जब भी हम आए तो टीचर से ज़्यादा हम बात करते थे, और किसी भी इशू पर डिस्कशन होती थी, फॉर एग्जांपल लीडरशिप पे, तो हमसे सवालात पूछे जाते थे. व्हाट डू यू थिंक? ओके, एक आर्मी है, उसका एक जनरल है जो लीडर है उसका, व्हाट शुड ही डू? एक जंग चल रही है, फाइट चल रही है, बैटल जा रही है, क्या उस जनरल को जाकर सोल्जर्स के साथ खड़े होकर फाइट करना चाहिए एज ए लीडर जस्ट टू शो द सिंपैथी, या उसको खुद की प्रोटेक्शन करनी चाहिए? नो सी, दिस इज समथिंग कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को आप कंपेल कर रहे हैं कि आप सोचें इसके बारे में, और फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स को दें, प्रेजेंट करें विद कॉन्फिडेंस, और फिर उनकी जस्टिफिकेशंस भी दें कि क्यों आपने ये कहा है, क्यों आपका ये ओपिनियन है. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट लेक्स अ लॉट इन द सिस्टम. How was your interaction with your coaches and like teachers there? Were they supportive? एक होता है ना stereotype होता है कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हो, आपको ऐसे कल्चर में लाइक कैसे एग्जिस्ट करना है, एक जो मिथ बनी हुई है ना कि लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सही नहीं ट्रीट किया जाता, तो उसके बारे में लाइक आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आई थिंक ये मिथ हमारे जहन में भी ऐसे ही थी जैसे आप बता रही हैं कि हमें शायद कोई जाहिर है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में,
तो हमें इस तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन वी वर शॉक्ड टू see their hospitality, see the love that we received from the Dona Institute in the university. Overall बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया गया, we were given extremely respect और बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली हमें वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोकल से भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो मेंटोर्स होते थे, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, I must take their names actually if they are watching this podcast. I thank you, Marcel, Sam, Jeremy, Allison, and particularly in Dona Institute, Becky, and then Shaheen, and then Mick, Can, Mike, everybody. They all were amazing people. They gave us respect a lot, and they were the persons जो बहुत ज़्यादा friendly भी थे और easy to approach persons हैं. So we used to treat them like a friend. और मज़े की बात ये थी कि this was another cultural shock for us. जिस तरह यहाँ हम टीचर्स को सर और मैडम कहते हैं, वहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग में जाकर, फॉर एग्जांपल हमारे एक टीचर थे कैन, एकेडमिक डायरेक्टर थे, हमने कहा सर कैन, हु इज सर हियर, आई एम नॉट सर, कॉल मी कैन. तो अब नाम से उन्हें बुलाना पड़ता था, कैन इज देयर शॉर्ट नेम. तो दिस इज अनदर कल्चरल शॉक. लेकिन ये है कि इफ़ यू आर अप फॉर इट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, do not think about it. It is an excellent opportunity, and you would be treated more than your expectations. आपकी उम्मीदों से ज़्यादा वहाँ से फिर आपको इज्जत भी मिलती है और प्यार भी मिलता है. I'm glad your experience was very like good in a sense कि you have achieved a lot of things जो आपको लगता है कि being अगर मैं इधर रहता तो ना सीख पाता obviously. बिल्कुल ऐसा. So would you like to share some tips for the students who are applying or who are availing for like the foreign scholarships? डेफिनेटली अगर आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए देख रहे हैं, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के बाद, तो आई वुड से 3 चीज़ें हैं जिनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है. फर्स्टली आपकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. एकेडमिक्स इंक्लूड्स आपकी CGPA, आपकी उससे पहले वाली जो मार्क्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए. सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी ज़रूर होनी चाहिए. दैट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, सो दैट शुड बी योर प्राइमरी फोकस एज वेल. थर्डली, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसमें रिसर्च ज़रूर करें. रिसर्च इज़ देयर प्राइमरी फोकस, एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन हु इज़ गुड एट रिसर्च इन देयर पर्टिकुलर फील्ड. तो अपनी पब्लिकेशन ज़रूर करवाएं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखें, रिलेवेंट जर्नल्स में पब्लिश करवाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में फोकस रहें और अपनी एकेडमिक्स को बेहतर बनाएं. सो दीज आर द 3 टिप्स आई वुड सजेस्ट फॉर दी पीपल अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स. ओके, यहाँ मैं पूछना भूल गई थी कि सूसी के लिए मिनिमम CGPA कितना सूजी, एज आई मैंशन, कि उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया रिगार्डिंग CGPA, लेकिन ये कि अ गुड CGPA डेफिनेटली प्लेज अ रोल. तो अगर आपकी CGPA 3 से ऊपर है तो डेफिनेटली इट डज प्ले अ पॉजिटिव रोल. लेकिन आई वुड से कि दिस इज़ नॉट समथिंग कि अल्टीमेटली इसी की बुनियाद पर सिलेक्शन होनी नहीं है. सो CGPA के रिगार्डलेस आप अप्लाई करें. अगर CGPA कम भी है तो यू शुड स्टिल बी होपफुल कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है. Thank you very much, Shazib, for your time. And I must say the whole conversation was very interesting. Last पे अगर आप कुछ और कहना चाहें तो for our audience तो आप कह सकते हैं. I think one of the primary things I would say for all the law students, in fact not only law students but overall students community, is कि you know, as a student you have to learn to make yourself self accountable. तो खुद के सामने और ख़ुद को खुद ही एहतसाब के कटहरे में ज़रूर खड़ा करें और देखें कि आपने ओवरऑल अपनी जर्नी में कौन से ऐसे लेकुनाज हैं जो आपने भी इम्प्रूव करने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपने भी इम्प्रूव करना है, जिनको अभी आपने टाइम नहीं दिया. कोशिश करें कि फिर उन चीज़ों पे ध्यान दें जिन चीज़ों पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया. सो खुद एहतसाबी मैं समझता हूँ कि हर हवाले से बहुत ज़रूरी है, रिगार्डिंग योर मोरालिटी, रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, रिगार्डिंग रिलीजन, रिगार्डिंग योर कम्युनिटी ओवरऑल, कम्युनिटी सर्विसेज, रिगार्डिंग योर एकेडमिक परफॉर्मेंस. हर हवाले से मैं समझता हूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी बहुत ज़रूरी है. और उससे बढ़कर अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो लॉ स्टूडेंट के लिए तो मैं समझता हूँ कि द प्राइमरी टिप वुड बी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को इम्प्रूव करें. आज के दुनिया में रिसोर्सेज कोई लिमिटेड नहीं है हमारे पास. वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज. आप कोर्सेरा से जाकर कोर्सेज करें, सीखें चीज़ों को, लीगल सिस्टम्स को एक्सप्लोर करें. लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल, इनफैक्ट वी हैव वेबिनार्स ऑन आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉ स्टूडेंट्स काउंसिल पे, और डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हैं जो कि हम ऑर्डिनरी अपने करिकुलम में नहीं पढ़ते. तो इंटरनेशनल लॉ के, फैमिली लॉज के, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ के वो जो सब्जेक्ट्स हैं जो हम टॉपिक नहीं पढ़ते क्लासरूम्स में, वो हमने कोशिश की कि डिस्कशंस हों वेबिनार्स में.
तो आप उनको जाकर सुने ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यू शुड बी लर्निंग समथिंग न्यू। अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ करें। हमारी वेबसाइट पर मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वेबिनार्स हैं, सेमिनार्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो हमने रिकॉर्ड किए हैं। और ख़ास तौर पे लॉ स्टूडेंट जो इस्लामाबाद में रहेंगे, जो हमारी एक्टिविटीज़ को इन पर्सन अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने अवेलेबल किए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सीखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी रिसर्च स्किल्स को ज़रूर इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना सीखें। कोशिश करें कि रिसर्च पब्लिकेशन भी ज़रूर करवाएं किसी भी अच्छी सी रिकग्नाइज जर्नल में, ताकि अगर आप इन फ्यूचर स्कॉलरशिप्स का इरादा रखते हैं तो उसमें आप सक्सेसफुल रह सकें। So I think that was all about, and thank you so much for having me. Thank you. It was such a pleasure to have you here and like discuss the whole thing about your career, about Law Students Council Pakistan, as well as the prestigious exchange program, Suzy. Thank you so So much. I think it will be helpful for the students and they will apply inshallah. और उसके अलावा अगर like कुछ भी इन लोगों को पूछना होगा या कोई ऐसी चीज़ है तो I'll be sharing your ID in the description box and they will message you और फिर आप उनको गाइड कर सकते हैं. So here you have it. Another captivating episode of Flex Unity comes to an end and I hope कि ये बहुत फ़ायदेमंद आप सबके लिए साबित हुई होगी और आप सूजी 2024 में ज़रूर अप्लाई करेंगे. Do not forget to hit the subscribe button and follow us on our socials. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.